Hello everyone. So today I will be teaching you another important topic for your upcoming NTPC exam. Topic for today is particulate emission control devices. So we will start with number one device, which is electrostatic precipitator. This device uses electric charge to remove impurities from air. It can remove particles of size around 1 micrometer and it works with 99% efficiency. So to remove particulate matter with highest efficiency, we use electrostatic precipitator. So let's see how it works. It is a filterless device that uses an electric charge to remove impurities from the air that are in solid, droplet, gaseous or liquid form. Okay, as I said, it uses electrical charge. This device helps in removing pollutants from smokestacks of factories, industrial manufacture and power plants. Okay, it helps remove impurities from smokestacks. Okay, basically this device consists of two type of electrodes. Okay, first is positive charged, another is negatively charged. So we will see how it works. This is the schematic diagram of your precipitator. Air is supplied through here and there are two types of electrodes, discharge electrode and collector electrode. Okay, so as I said, there are two types, positive and negative. Discharge electrodes are negatively charged. Okay, these are negatively charged, which are mainly made of mesh wires. Okay, mesh wires of copper. And this collector electrode, these are basically plates which are positively charged. As impurities get negatively charged due to these discharge electrodes, they get attracted towards this collector electrode, which is positively charged. This is positive, this is negative. Okay, तो नेगेटिव से चार्ज जो हमारी impurities है वो पॉजिटिव तरफ आती हैं, वो एट द एंड हमारे हॉपर से पास होती हैं और हमारी डस्ट नीचे चली जाती है. ओके, एंड देन वी कैन कलेक्ट clean air at this end. Impurities are collected through hopper at the bottom and the clean air is passed through this point. Okay, this is basic diagram of precipitator. Clear है? तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किस कंपोनेंट से बने होते हैं, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है. ओके, so these take the soot, ashes and unburned carbon dioxide from the smoke. Okay, जो भी आपकी सूट, एशेज और अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हेल्प करता है रिमूव करने के लिए यूजिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, एज I said, it works with efficiency of 99% and it can remove particles of 1 micrometer in diameter. ओके, तो हम इसका वर्किंग और डिटेल में पढ़ते हैं. As I said, it includes of electrodes, 440 volt 50 hertz 3-phase supply, rectifier, hooper and insulator. Okay, so these are the basic components of a precipitator. The positive electrodes is in the form of plates. As I said, the positive electrodes is in the form of plates. These are plates. And negative one is in the form of mesh wire. Okay, so basically these are plates. And this is mesh wire. Okay, I hope it is clear to you. The main function of these two electrodes is to create a strong negative field that sends a flux to ionize the particles present in the flue gas. Okay, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं फ्लू गैस के अंदर वो आयनाइज्ड हो जाते हैं.
Okay, the collecting electrodes are made of steel, which helps in attracting the ionized particles. Okay, जो collecting electrode है वो स्टील से बनी होती है, जो फिर हेल्प करती है collecting the ionized particles को. कौन सी स्टील से बनी होंगी? These one. This is collector electrode. These are made of steel. Okay, clear है? ध्यान से समझने पॉइंट्स. ठीक है, किससे बना होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है. तो इसमें नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर यूनिट. रेक्टिफिकेशन यूनिट बेसिकली क्या करती है, जो आपकी एसी वोल्टेज है, ओके, उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है. इट कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज. क्यों करना पड़ता है? ताकि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकें. ठीक है, टू रिमूव योर इम्प्योरिटीज. ओके, दिस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल एनालाइज द पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैस. तो रेक्टिफायर यूनिट का बेसिक ये होता है कि टू चेंज एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज. ओके, क्लियर है? As I said, the plates or wires of the electrostatic precipitator are positively charged and will attract the negatively charged particles. सिंपल है. जो प्लेट्स हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, वो अट्रैक्ट करेंगे आप नेगेटिवली चार्ज जो भी आपके आयनाइज पार्टिकल्स हो गए हैं. ठीक है, बेसिकली जो आपका रेक्टिफायर यूनिट है, ये इसका फंक्शन क्या आपसे अगर पूछे तो टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज. ओके, so now what are the applications of electrostatic precipitators? ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? ओके, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है. आपके सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है. ओके, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या करता है, कलेक्ट करता है पार्टिकल्स लाइक सूट, ऐश एंड सीमेंट. ठीक है, ऐश हमारी सबसे ज्यादा किस में से निकलती है? थर्मल पावर प्लांट में से. तो ये थर्मल पावर प्लांट में यूज हो सकता है. ओके, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग उसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिनमें यूज हो सकता है. फर्दर ये आपका यूज हो सकता है फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस एंड मेटलर्जिकल हीटिंग सिस्टम गैसेस को. ठीक है, ब्लास्ट फर्नेसेस एंड मेटलर्जिक हीटिंग के लिए. और मेडिकल फील्ड में यूज हो सकता है ये. ठीक है, जो बैक्टीरिया फंगस को एलिमिनेट करने के लिए. क्लियर है? दीज आर आल्सो यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स फॉर प्यूरिफाइंग एयर. जो आपकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें भी ESP लगा होता है. ओके, दिस कैन आल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग एक्सप्लोसिव डस्ट, मिस्ट एंड मटेरियल्स फ्रॉम द फ्यूम्स. ओके, इट कैन आल्सो कैप्चर फाइन ब्लैक पाउडर और फाइन ब्लैक पाउडर और ऑक्साइड्स. जो भी आपके गैस फ्लो में फाइन ब्लैक कार्बन पाउडर है, जो भी ऑक्साइड्स उनको भी कलेक्ट कर सकता है. So it has further also used in pulp industries and power industries. Okay. तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनमें से फॉलोइंग में ESP का यूज एप्लीकेशन किस किस में है. ओके, पल्प इंडस्ट्रीज हो गए हैं, पावर प्लांट्स हो गए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई हैं, ब्लास्ट फर्नेस हो गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हो गई है. तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं. ओके, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. So this diagram shows working of electrostatic precipitator. ओके, यहाँ से आपकी गैस आ रही है, इम्प्योर गैस है आपकी. ठीक है, यहाँ से आपकी इम्प्योर गैस एंटर कर रही है और ये आपके पार्टिकल्स आयनाइज होकर नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं. ठीक है, फिर अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे? स्मोक पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है कलेक्टिंग प्लेट. ये कलेक्टिंग प्लेट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस मेटल ग्रिड्स आर नेगेटिवली चार्ज. ये मेटल ग्रिड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, जिससे आयनाइज हो गए हैं. ओके, सो आपके जो भी वेस्ट गैसेस हैं विदाउट स्मोक पार्टिकल्स, वो फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मतलब इसको हमने फिल्टर कर दिया है बेसिकली. ठीक है, इनलेट गई, आयनाइज हुए, नेगेटिवली मेटल ग्रिड है, यहाँ पॉजिटिव है. ये एक और वर्किंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की. ठीक है, सिंपल वे में अगर डायग्राम बनाना हो,
आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्लियर हो गया है। ओके, कितनी एफिशिएंसी होती है, किस टाइप के पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रोड्स किस टाइप के होते हैं, एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान से समझना। टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इन सीरीज। ओके, दो प्रेसिपिटेटर्स हमको सीरीज में दिए हुए हैं। द फ्रैक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ESPs फॉर साइज GP आर 80% एंड 65%। तो जो दोनों सीरीज में उनकी एफिशिएंसी हमें दी हुई है, एक की 80% है एंड अनदर हैव एफिशिएंसी 65%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है। सिंपली क्या क्या हुआ है इसमें, हमें two ESPs are in series. Okay, हम कंसिडर कर लेते हैं ESP1 है, ये ESP2 है। इसकी हमें एफिशिएंसी दी हुई है। ओके, फर्स्ट की एफिशिएंसी है 80% और सेकंड की एफिशिएंसी है 65%। क्लियर है? इफ electrostatic precipitator 1 is able to remove particulates with efficiency of 80%, then what it means, then 20% are not removed. Okay, 20% are not removed by ESP1, so that 20% will be removed by this ESP2. Okay, मान लो अगर X है टोटल हमारे पास पर्टिकुलर रिमूवल की, टोटल हमें जितने पर्टिकुलर रिमूव करना है X है। ओके, अगर उसमें से 80% रिमूव हो रहे हैं तो उसमें से कितने रह जाएंगे हमारे पास, 20 रह जाएंगे। ठीक है, अब इस 20 को कौन रिमूव करेगा, इस सेकंड रिमूव करेगा। क्लियर है? और इसको 20 को सेकंड कितनी परसेंट एफिशिएंसी रिमूव करेगा, 65% एफिशिएंसी से। क्लियर है? फर्स्ट ने रिमूव कर दिया 80%, बचे 20%, 20% को रिमूव करेगा सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इसी को हम इक्वेशन टर्म में लिख देंगे। ओके, सो क्या हुआ, मतलब सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी है 80%। ओके, फर्स्ट की एफिशिएंसी है 80%, यानी कि 80/100 प्लस ओवरऑल निकालनी है, सीरीज में है, प्लस जो इसकी 20% इंटू में 65%। ओके, तो क्या रहेगा हमारा 20% कितनी एफिशिएंसी से रिमूव हो सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय 65% एफिशिएंसी। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब ओवरऑल एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, ठीक है, तो इसको लास्ट में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इस सारी इक्वेशन को लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आएगा आपका 93%। क्लियर है? 80% प्लस 20% मल्टीप्लाई 65% मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको सोल्व करके आ जाता है 93%। तो ये होगी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर दिस सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। ओके, ये था सारा आपके ESP से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज वेंचुरी स्क्रबर। ओके, वेंचुरी स्क्रबर्स आर एबल टू रिमूव बोथ पर्टिकुलेट मैटर एज वेल एज गैसियस पोल्यूटेंट्स। ओके, पर्टिकुलेट मैटर और गैसियस पोल्यूशन दोनों रिमूव कर सकता है। इट कैन रिमूव particles of size greater than 0.5 micrometer, okay, of size greater than 0.5 micrometer and works with efficiency of around 99%। कितनी efficiency वर्क करता है, अराउंड 99% efficiency से रिमूव कर सकता है पार्टिकल्स को। ओके, तो वेंचुरी स्क्रबर के अंदर हमारे बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। वन इज कन्वर्जिंग सेक्शन, देन थ्रोट एंड डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग समझते हैं, क्या होता है कन्वर्जिंग, थ्रोट और डाइवर्जिंग, किस तरह से वर्क करता है ये। This one is converging, okay,
नैरो हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, थ्रोट बिल्कुल सबसे नैरोएस्ट है, दिस इज थ्रोट एंड दिस वन इज डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है, यहाँ से ब्रॉड हो रहा है. So our gas and particles enter from the converging section. Okay. So as the area decreases, velocity increases. Okay. Area is decreasing as we move to the throat section. So the velocity of the gas particles will increase. This is as per Bernoulli's equation. Okay, as per Bernoulli's equation. So as per Bernoulli's equation, velocity here will be maximum. Okay, velocity of the gas particle will be maximum. Okay, so liquid is introduced at this throat section. Gas plus particles are entering here. Liquid is introduced at the throat section. तो उससे क्या होगा, जो भी आप लोगों के इनलेट गैस स्ट्रीम में मिक्स होती है फॉग ऑफ टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ. कैसी होती है ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स, कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं जब भी आपके वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो लिक्विड पार्टिकल्स वॉल्स के साथ शेयर होंगे. ओके, शेयर होने के साथ फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगी. ओके, क्लियर है. द इनलेट गैस फोर्स टू मूव एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटीज at the small throat section shears the liquid from its walls, producing enormous number of very tiny droplets. Okay, because of high velocity, it is shearing the wall and creating very tiny droplets. Okay, and because of these tiny droplets, there is fog. Okay, there is fog of tiny droplets. And this gas stream mixes with tiny droplets. Okay, so सब कुछ रिमूवल कहाँ पे हो रहा है, थ्रोट सेक्शन के अंदर. क्लियर है. एंड देन द इनलेट एग्जिट्स फ्रॉम द डाइवर्जिंग सेक्शन. ओके, जो भी आपकी इनलेट स्ट्रीम है वो एग्जिट किससे करेगी, आपकी दिस डाइवर्जिंग सेक्शन से. और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लीन्ड गैस प्लस डर्टी ड्रॉपलेट्स. ओके, गैस क्लीन मिल रही है एंड दैट इज ड्रॉपलेट्स आर डर्टी. So this is a basic mechanism behind Venturi scrubber. Okay, so this phenomena of enormous number of tiny droplets with which fog gets mixed with the gas particles, this process is known as atomized water vapor. Atomized water vapor. Okay, तो आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वेंचुरी स्क्रबर. So principle behind Venturi scrubber is atomized water vapor. Okay, so remember it clearly. Particle size कितना रिमूव होता है, what is efficiency, how many sections are there, you have to all remember it. Okay, तो ये basics आप लोगों का था. Now we will move to some important questions related to your exam. Okay. Now we will cover both questions related to Venturi scrubber and electrostatic respirator. Question number 1 states that Venturi scrubber, a device used to remove particulate matter from the atmosphere, works on the principle of. Okay, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है किस पे वर्क करता है ये. तो एज अ डिस्कस्ड वेंचुरी स्क्रबर किस पे वर्क करता है, एटमाइज्ड वाटर वेपर पे. ओके, सेटलिंग में ग्रेविटेशन फोर्स किससे होता है, ग्रेविटेशन सेटलिंग चैम्बर में. ओके, जो हम पढ़ेंगे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे होता है, जो भी हमारे साइक्लोन कलेक्टर्स होते हैं उसका प्रिंसिपल है. इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का. ओके, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेंचुरी स्क्रबर का एटमाइज्ड वाटर वेपर. Next question stated, which of the following equipment has the most widespread use in the industry to remove particulate matter? इनमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है particulate matter को रिमूव करने का, मैक्सिमम पूछ रहा है. तो मैक्सिमम मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हमारे वेरी टाइनी पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं. ओके, और इसकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी.
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज्ड? इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है? See, from all these options, it has its applications in all of it. Okay, it can remove dust, it can also remove fumes, it can also remove water vapor, but it's most widely used to remove combustion particles. Okay, इसलिए पूछा है for most widely used. Okay, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. So it is most widely used for removing combustion particulates. Next question is which of the following is not a widespread application of electrostatic precipitator? इनमें से कौन सी एक एप्लीकेशन नहीं है? It is used to remove combustion particle removal. Okay, as we studied now. It is also used to remove acid mist removal. Okay, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ड्राई और वेट दोनों बहुत स्टेट्स में रिमूव करते हैं पार्टिकल्स को. ओके, ड्राई एंड वेट बोथ. नेक्स्ट इज बेसिक मिस्ट. नो, जो अल्कलाइन मिस्ट के लिए यूज नहीं होता है. ठीक है, डस्ट फाइबर भी रिमूव होती है. तो इसमें हमसे पूछा गया नॉट अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन. सो नॉट अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इज बेसिक मिस्ट रिमूवल. ओके, दो बात ध्यान रखनी है, एक ये ड्राई और वेट दोनों को रिमूव कर सकता है. ठीक है, और जिसको रिमूव नहीं कर सकता है वो क्या है? आपके बेसिक मिस्ट नहीं रिमूव कर सकता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हिच काइंड ऑफ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन? So this process is physical process. Okay, it is a physical process. It is not even chemical, not biological, not physiochemical. Okay. Next question said to obtain high efficiency for high capacities, how is the electrostatic precipitator used? हम efficiency को increase करने के लिए कैसे electrostatic precipitator use कर सकते हैं? Okay, तो वो पूछा गया हमसे. We can use multiple electrostatic precipitator in parallel to increase our efficiency. Okay, one big unit से कुछ हमारी efficiency increase नहीं होगी. We cannot even increase with pre-treatment. Not another equipment is required. So to increase efficiency, we can use multiple precipitators in parallel. Next question is which kind of electrostatic precipitator used most widely in the industries? Which of it is most widely used? Singular, multipolar, wire and pipe, parallel plate type. It is most widely used as a parallel plate type. Okay, parallel plate type is most widely used in various kind of industries. तो आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री में कौन सा मिलेगा? पैरेलल प्लेट टाइप का. Next question states that which of the following factors determines the collection efficiency of the electrostatic प्रेसिपिटेटर्स? इन चारों में से कौन से पे हमारा एफिशिएंसी डिटरमाइन करती है? ओके, हमारी एफिशिएंसी दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो आपकी गैस फ्लो की वेलोसिटी, ओके, गैस फ्लो रेट, एंड सेकंड इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ओके, उसका एरिया कितना है और जो गैस फ्लो रेट क्या है. सो करेक्ट, आप नेचर भी नहीं है, पीरियड भी नहीं है तुम्हारा. एक तो रहेगा गैस फ्लो रेट, और अगर आपका ऑप्शन में पूछ सकता है एरिया. एरिया ऑफ द ईएसपी, इस पे भी हमारी एफिशिएंसी डिपेंड करती है. ओके, अगर आपको गैस फ्लो रेट नहीं दिया, एरिया दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एरिया. So next question is which of the following is not a primary type of wet scrubber? इनमें से कौन सा वेट स्क्रबर का टाइप नहीं है? स्प्रे टावर टाइप है एक. ओके, वेट स्क्रबर्स का. वेंचुरस स्क्रबर भी एक टाइप है. पैक्ड वोल कॉलम्स भी एक टाइप है. हमारा कोई प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर स्क्रबर्स को टाइप नहीं होता है. ओके,
सो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन इज नॉट अ पूछा था ना हमसे, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ, सो हमसे विल प्लेट एंड फ्रेम. So our last question is wet scrubbers work based on several principles. Okay, हमें principles दिए हुए हैं. Which of the following is not one of its principle? इन चारों principles में से कौन सा principles नहीं है हमारा wet scrubber का? तो kindly comment your answer for this last question in the comment section below. Okay, I hope these devices are clear to you, and we will cover more further devices in our next video. So we will meet in next video. Thank you.